So, good morning, all of you. Yesterday we were doing chapter 6, water resources, and I explained you many things like water resources of India. I think we have completed all these pages. Ground resources of India, then lagoons and backwaters. Then I had explained to you about this these flow chart that agriculture sector utilizes maximum amount of surface water as well as underground water. Then demand of water for irrigation in India, huge amount of water is utilized for irrigation purpose, because in India we have monsoon type of rainfall which is highly erratic, irregular, and there are number of variations. That's why we are dependent upon irrigation, so that we can supplement our agriculture and production good amount of production can be achieved. And then there were some other reasons also, that why irrigation is important for India, why the demand for water for irrigation purposes more in India. So I had told you about 4 to 5 reasons. You have to go through all the reasons very carefully because it is a very important question for board examination. Then I had explained you about this map work, that how the upper reach of the river is remains pure in its form, but the moment it enters the plain area, because of high population and industrialization, urbanization, it gets polluted. Then deterioration of water quality. Water quality means purity of the water without any unwanted substances. So we have covered all these topics. Then water conservation and management. Prevention of water pollution board, we have completed these topics. Recycle and reuse bhi ho chuka tha. So today we have to start a very important topic, that is watershed management. All right. Now watershed management is a new concept which is undertaken by government of different countries to manage the water resources, both surface water and underground water. In very simple terms, just understand what is management. Management basically means to manage something. All right. To proper utilization, proper conservation, then without any wastage. So proper utilization, optimum utilization of anything is known as management. ताकि कोई भी काम प्रॉपर तरीके से चल पाए, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं. सो वाटरशेड मैनेजमेंट मीन्स दैट proper utilization, efficient utilization of our surface water and groundwater resources is known as watershed management. So, all the water resources present in India, whether they are surface water resources in the form of rivers, lakes, springs, and ponds, or underground water resources, they should be conserved properly, and this is known as watershed management. सो ऑल द स्ट्रेटेजीज और ऑल द जो भी स्ट्रेटेजी आप यूज करें, चाहे जो भी आप पॉलिसी यूज करें, ताकि हम अपने भौम जल को और हम अपने सरफेस जो हमारा जो वाटर है उसको प्रिजर्व करके रख सकें, उसे प्रॉपर मैनेज कर सकें, प्रॉपरली कंजर्व कर सकें, इस पूरे सिस्टम को हम कहते हैं वाटरशेड मैनेजमेंट. सो इन द फर्स्ट 3 लाइन्स यू कैन सी watershed management refers to efficient management and conservation of surface and groundwater resources. So watershed management, basically you have to remember these words very carefully: efficient management and conservation of not only surface but also underground water resources. It involves prevention of runoff and storage and recharge of groundwater through various methods like percolation tanks, recharge wells, etc. So basically watershed management involves कंजर्वेशन एंड स्टोरेज ऑफ रेनफॉल वाटर. रेनफॉल, जब बारिश का पानी आता है तो उससे मैक्सिमम पानी जो होता है एज ए सरफेस रन ऑफ, मतलब वो बहकर चला जाता है और कहीं नाले में या कहीं और जगह जाके स्टोर हो जाता है और वो वेस्ट हो जाता है. So proper, we have to do proper arrangement so that we can prevent this surface runoff and store rainwater, in a proper way, and recharge our underground water. ताकि हमारा जो अंडरग्राउंड वाटर है उसको भी हम रिचार्ज करें, मतलब वापस से रिप्लेनिश करें, बिकॉज वी आर यूजिंग अंडरग्राउंड वाटर इन अ वेरी maximum way. So we have to again recharge our underground water. For this purpose watershed management is very important. So I hope कि आपको समझ में आ गया होगा. Watershed management basically means conservation and proper utilization of surface and underground water. It involves प्रिवेंशन ऑफ रन ऑफ. रन ऑफ किसका होता है, मतलब कोई भी पानी बहकर, जैसे बारिश का पानी होता है तो बहकर कहीं वेस्ट ना हो, उसे हम बचा के रख सकें, स्टोर कर सकें, एंड अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको वापस रिचार्ज कर सके थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स. दिस ऑल दीज थिंग्स कम अंडर वाटरशेड मैनेजमेंट. However, in broad sense, watershed management includes conservation,
regeneration, and judicious use of all resources. But if we talk about watershed management in a larger larger perspective, तो उस नजरिए से watershed shed management does not only includes water management, but it also includes other natural resources like land, flora and fauna also. सपोज वी हैव टू डू वाटरशेड मैनेजमेंट इन ऋषिकेश, ये जो गंगा रिवर है उसके आसपास का जो भी एरिया है वहां पे हमें वाटरशेड मैनेजमेंट करना है. तो इट डज नॉट ओनली इंक्लूड वाटर प्रिजर्वेशन ऑफ वाटर ओनली, it will also include proper management and conservation of the flora and fauna and land resource of Rishikesh also. So it is a total composite compact concept. It is a composite समझते हो, जो सब चीजों को इन्वॉल्व करता है, so that ecological balance can be maintained, and along with them humans को भी manage करना. ऑल राइट, एंड ह्यूमन विद द वाटर शेड. सो एक मान लो हमने कोई भी एक जगह ले ली जहाँ पे हमें वाटर शेड मैनेजमेंट करना है, तो उसे हम टोटलिटी में मैनेज करेंगे, नॉट ओनली वाटर रिसोर्स. अगर हमने सब कुछ टोटलिटी में मैनेज कर लिया, कंजर्व कर लिया, तो वहां पे वाटर भी अपने ऑटोमेटिकली कंजर्व हो जाएगा. इसीलिए हमें ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, लैंड अलोंग विद वाटर सबको मैनेज करना जरूरी होता है. So basically, watershed management is a composite concept. It is not a very small concept, and it includes conservation. Conservation आप जानते हो क्या होता है, किसी चीज को बचाना. Regeneration, अगर कोई चीज खत्म हो रही है तो उसको वापस से रीजनरेट करना, लाइक अंडरग्राउंड वाटर अगर खत्म हो रहा है तो उसे वापस से रिप्लेनिश करना. एंड जुडिशियस यूज मतलब टू यूज रिसोर्सेज इन अ प्रॉपर मैनर, एफिशिएंट मैनर, विदाउट एनी wastage. And it does not include only water but also plants, animals, humans also, and land resource. So watershed management is a very big concept. जिस एरिया में भी सरकार watershed management करती है, so वो ट्राई करती है कि उस एरिया को इन टोटलिटी में डेवलप किया जाए. Watershed management aims at bringing about balance between natural resources on the one hand and society on the other. So watershed management is a very important step by the government to maintain a harmonious balance between the natural resources of an area and the people who are living there. So a balance can be maintained between the natural resources and the society. तभी जो है डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाएगा. अगर हमने नेचुरल रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लॉइट कर दिया और तालमेल नहीं बना के रख पाए, तो इकोलॉजिकल जो है डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम फेस कर सकते हैं. एंड द वन ऑफ द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ वाटरशेड मैनेजमेंट इज टू कंजर्व आवर रिसोर्सेज, बेसिकली वाटर रिसोर्स, with the help of community participation. This is a very important concept. See, अगर किसी भी एरिया में कोई भी प्रॉब्लम है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, सो द मेन कल्प्रिट और द मेन एलिमेंट ऑफ प्रॉब्लम इज ह्यूमन बींग्स. तो अगर हमने ह्यूमन बींग्स को छोड़ दिया, अगर सरकार अपने मन से कुछ भी करती रही, तो वो फिर सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट हर जगह जाके हर इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती है. लंबे समय तक जिन लोगों को वहां पे रहना है, उनका पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. So the main gist of this watershed management is to conserve our resources, to manage our water resources, but along with the help of our community who is living there. So community participation is a very important concept in watershed management. All right. So I hope you have understand watershed management, because it is a 5 marks question and you should understand it very carefully. So you have to remember some words like efficient management and conservation of surface and groundwater resources. This is a very important point which you have to write in any case. Then it also includes conservation, regeneration, and judicious use of resources. See, an entire paragraph has been given on watershed management, but you can pick up some words, some lines which you have to use in the answer. So you can use conservation, regeneration, and judicious use of all resources. And it is a composite concept, and it not only includes water conservation, but also emphasis is laid on the conservation of other natural resources like land, flora, fauna, and along with humans. And the main aim of watershed management, एम भी आपको याद करना पड़ेगा. एम क्या होता है इसका? टू मेंटेन अ हार्मोनियस बैलेंस बिटवीन नेचुरल रिसोर्सेज एंड द सोसाइटी ऑन द अदर हैंड. And it also depends upon community participation. The aim of the government is to aware people and to invite people in the conservation of water and other resources. So community participation जरूर इसमें आप लिखना, because it is very important.
सो इसमें आपको प्रॉपर वर्ड समझ में आ चुके होंगे. देन क्वेश्चन कम्स that for example in the board examination they ask that what is watershed management and give examples or case studies of some of the watershed management programs run by the government in different parts of India. So now these are some of the programs which are run by the government. The central and the state government have initiated many watershed development and management programs in the country. Some of these are being implemented by non-government organizations like NGOs. First important program is Haryali. Haryali, as the name suggests, it is a watershed development project and it is sponsored by central government. इसे स्पॉन्सर किसने किया, इसमें फाइनेंशियल एड कौन दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट. एंड इट एम्स एट इनेबलिंग the rural population to conserve water for drinking, irrigation, fisheries, and afforestation. So Haryali is a project which is sponsored by the central government, and the main aim of Haryali is, through community participation by the rural people. जो गांव के लोग हैं, जहाँ पे भी ये प्रोग्राम चलाया गया है, ठीक है, जहां जहां इसको प्रोग्राम को चलाया जा रहा है, जिन जिलों में, डिस्ट्रिक्ट्स में, तो वहां पे जो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के थ्रू वाटर को प्रिजर्व किया जाए एंड इट शुड बी यूज्ड फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड फिशरीज एंड एफॉरेस्टेशन के लिए उसको इस्तेमाल किया जा सके. ठीक है. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, रूरल पॉपुलेशन की जो हेल्प के थ्रू ही इस प्रोग्राम को चलाया जा रहा है एंड इट इज एग्जीक्यूटेड बाय द ग्राम पंचायत विद द पीपल्स participation. So see the main thrust of this program is that it is executed by the panchayat, not by the state government or the central government. Although central government is sponsoring this project, बट इसको पूरा करने की जो जिम्मेदारी दी गई है, इसको पूरा करने का जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये पंचायत को दी गई है. ठीक है. और पंचायत किसके हेल्प से करते हैं, विद द पीपल्स पार्टिसिपेशन. सो कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इज द कोर ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट program. So first program is Haryali by central government, rural population participation, water conservation for drinking, irrigation, fisheries and afforestation. तो ये आपको जिस समझ में आ गया होगा हरियाली. Second watershed management program run in the country is Niru Miru. It is it has been undertaken in Andhra Pradesh, and Niru Miru in Telugu means water and you program, and Arwari Pani Sansad in Alwar, Rajasthan. These projects have been taken up constructions of various water harvesting structures such as percolation tank, dugout ponds, check dams, etc. through people's participation. Now both these projects, Niru Miru and Arwari Pani Sansad, just like Niru Miru आंध्र प्रदेश में है, अरवारी पानी संसद अलवर राजस्थान में. तो ये दोनों ही प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें अगेन विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल, लोकल पार्टिसिपेशन, वहां पे वाटर, रेन वाटर को जो है हार्वेस्टिंग के लिए, रेन वाटर को कंजर्व करने के लिए जो है स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं. लाइक परकुलेशन टैंक हो गया. देन जगह जगह मतलब गड्ढे खोदे जा रहे हैं ताकि वहां पे पॉन्ड्स को बनाया जा सके. चेक डैम्स जो होते हैं आपके स्मॉल डैम्स होते हैं जिन्हें हम आसानी से बना सकते हैं. सो चेक डैम, परकुलेशन टैंक्स एंड डग आउट पॉन्ड्स जो हैं उन्हें जगह जगह बनाए जाते हैं ताकि जब भी बारिश हो तो वो सरफेस रन ऑफ बन के बहे ना, वो पानी उस स्ट्रक्चर में स्टोर हो जाए. ठीक है. सो बेसिकली द एम ऑफ द नीरू मीरू एंड अरवारी पानी संसद इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग, और फॉर विच नंबर ऑफ स्ट्रक्चर्स आर बिल्ड, जो आपको बता दिया गया. परकुलेशन टैंक्स, ये सब आप अंडरलाइन कर लीजिए. परकुलेशन टैंक्स, डग आउट पॉन्ड्स, जगह जगह पॉन्ड्स बनाना, चेक डैम्स. अच्छा, आपको पता है पहले जब हमें आज़ादी नहीं मिली थी, उस समय हमारे देश में समझो कि लाखों जो है लेक्स और पॉन्ड्स थे, क्योंकि उस समय हमारे पास डैम्स नहीं थे. तो जितने भी रूलर्स थे उन्होंने जगह जगह डिप्रेशंस बना रखे थे. डिप्रेशन मतलब आपने गड्ढा कहीं कर दिया तो उसमें ऑटोमेटिकली जब भी बारिश होगा तो पानी स्टोर हो जाएगा और उसको आप फिर लेटर ऑन जो है आप इस्तेमाल कर सकते हो. जो आपको पता होगा कि जो मैसूर राज्य है वहाँ के जो रूलर थे उन्होंने अपने ही उसमें थाउजेंड्स ऑफ जो है आपके पॉन्ड्स बना रखे थे. बट जब हमें आफ्टर इंडिपेंडेंस या फिर अंग्रेजों के टाइम में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया, सारे एरियाज को भर दिए, लेवल कर दिया. क्यों? क्योंकि उन्हें खेती करनी थी, उन्हें घर अपने सेटलमेंट क्रिएट करना था, जिसकी वजह से क्या हुआ कि जब ये पॉन्ड्स खत्म हो गए तो बारिश जब होती थी तो पानी स्टोर करने के लिए कोई जगह ही नहीं बची. इससे क्या हुआ कि सरफेस रन ऑफ के थ्रू ये पानी वेस्ट होते चले गए और पब्लिक जो थी, जो लोग थे, वो पानी के लिए परेशान होने लग गए. सो वी स्टार्टेड फेसिंग वाटर स्केसिटी. इतनी वाटर स्केसिटी पहले के जमाने में नहीं थी क्योंकि वी वर डिपेंडेंट ऑन द नेचुरल फैक्टर्स. रेनफॉल पे हम मैक्सिमम डिपेंडेंट थे, उस समय डैम्स तो थे नहीं, तो हम नेचुरल फैक्टर्स पे डिपेंडेंट थे. तो वी ट्राई टू यूज एंड स्टोर रेन वाटर. ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम बहुत पुराना है.
फर्स्ट बीसी से ही हमारी कंट्री में जो है बहुत सारे जो है स्ट्रक्चर्स ऐसे बने हुए जो आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा, ठीक है। जैसे कि आपका अग्रसेन की बावली बनी हुई थी, देन आपका जो है हौजे खास है दिल्ली में, दैट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय इल्तुतमिश। और उससे भी बहुत पहले जो है हमारे चोलास जो किंग थे उन्होंने भी बहुत सारे ऐसे लेक्स और डैम्स जो है छोटे बड़े बना रखे हैं। तो ये जो सिस्टम है, मतलब हम हर जगह जो है तो टैप का पानी सप्लाई नहीं कर सकते। सो वी हैव टू क्रिएट डिप्रेशंस, वी हैव टू डग द अर्थ सो दैट वी कैन स्टोर रेन वाटर so that it can be utilized. Now, Tamil Nadu has made water harvesting structure in the houses compulsory. In Tamil Nadu, it is compulsory for each and every house to construct rainwater harvesting system, because later on they cannot complain to the government that we are not getting sufficient amount of rainfall, because there is problem of water in Tamil Nadu. So that's why government has instructed each and every house to make their own rainwater harvesting structure, so that they cannot face so they will not face एनी वाटर प्रॉब्लम इन द नियर फ्यूचर। अगर आपने नहीं बनाया है तो आप गवर्नमेंट को कंप्लेन नहीं कर सकते हो, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने घर पे रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम बनाओ और उसे स्टोर करो। बट ये चीज हर पूरे इंडिया के स्टेट्स में नहीं है। For example, North India, because we have number of rivers, we are getting ample amount of rainfall. That's why we are not constructing this rainwater harvesting system in our houses. क्योंकि हम क्या करते हैं, जब प्रॉब्लम होती है तब जाके हम ये सब स्टार्ट करते हैं। हम पहले से ही जो है स्टेप नहीं उठाते हैं कि चलो हम पहले से ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग करें ताकि हमें इस समस्या कभी हो ही ना। तो दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। अगर हम हर घर में ये जो है प्रैक्टिस कर दे कि सबको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, जैसे कि आप ये सब बहुत चीज़ जानते हो ऑलरेडी, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। लाइक वी शुड नॉट यूज फ्रेश वाटर फॉर गार्डनिंग पर्पज और फॉर वॉशिंग आर कार और फॉर वॉशिंग हाउसेज। जो भी वाटर रिमेन्स होते हैं, जैसे कि हमने जो सब्जी धुली है उससे जो पानी बच गया या जो और वेस्ट पानी, तो उसको हम गार्डन में डाल सकते हैं या कार को वॉश कर सकते हैं। हमें फ्रेश वाटर सिर्फ पीने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सब प्रैक्टिसेस वी ऑलरेडी नो, बट वी आर नॉट डूइंग इट इन अ प्रॉपर मैनर। So, watershed development projects in some areas have been successful in rejuvenating environment and economy. However, these are only a few success stories. अभी बहुत कुछ करना बाकी है क्योंकि पूरे भारत में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल अभी हम नहीं हो पाए। सो वाटरशेड मैनेजमेंट का डेफिनेशन आपको पता चल गया, एंड द प्रोग्राम्स विच आर रन आर हरियाली, नीरू मीरू एंड अरवारी पानी संसद। They can come in MCQs also, and then they can come in 5 marks question also. Then next is rainwater harvesting. Now rainwater is the biggest source for fresh water on earth, and through and if we will conserve and store rainwater in a proper manner, then we will not face any water deficiency. बट ये अगेन हम लोग इसे प्रैक्टिस नहीं करते हैं। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए मेथड टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर फॉर वेरियस यूजेस। तो ये भी क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, इसको भी आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। इट इज ए बहुत ही आसान है। इट इज ए टेक्निक टू कैप्चर एंड स्टोर रेन वाटर। बेसिकली इसमें होता क्या है, हम क्या करते हैं कि अपने घरों पे जो हमारा जो छत होती है उसको हम क्लीन करते हैं जब भी हमें पता है बारिश होने वाली है। देन हम वहाँ पे एक जगह जो है छोड़ कर रखते हैं, और उससे हम एक पीवीसी पाइप अटैच करते हैं जो नीचे की तरफ आता है, और जो हमारे घर का कोर्टयार्ड होता है, जो खाली जगह होती है, वहाँ पे हम अंडरग्राउंड टैंक बना देते हैं। और वो टैंक बहुत ही साफ सुथरा होता है। जैसे राजस्थान में तो दे आर मेड अप ऑफ मार्बल, ठीक है, उसे टैंक टंका कहा जाता है। तो उसको बहुत साफ सुथरे तरीके से बना देते हैं, और उस पर पूरा उसे ढकने का भी पूरा इंतजाम होता है। और जब बारिश होती है तो वो पानी जो होता है वो उस पाइप के थ्रू उस टैंक में जाके स्टोर हो जाता है। तो जब भी आपको कुछ इस्तेमाल करना है डिफरेंट पर्पस के लिए, सिंचाई के लिए भी इसको इस्तेमाल किया जाता है जो ड्राई एरियाज हैं, ठीक है, या फिर और पीने, और कई जगह तो पीने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन वो फिर उसके लिए मशीन चाहिए होती है ताकि उसे प्योरीफाई किया जा सके। लाइक यहाँ पे दिल्ली में मैंने देखा था कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर जो है एक पूरे जो फ्लैट का जो एरिया था, फ्लैट जो कॉम्प्लेक्स होता है वहां पे था, बट उनके पास बहुत ही सोफिस्टिकेटेड मशीन्स लगी थी जिसमें वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो वाटर था उसको प्योर करके उसे पीने के लिए भी इस्तेमाल कर पा रहे थे। लेकिन हर घर के लिए, गांव के लिए इस्तेमाल करना पॉसिबल नहीं है, बट वी कैन यूज देम फॉर इरिगेशन, वी कैन यूज देम फॉर फॉर एनी अदर पर्पज, हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इट इज ऑल्सो यूज टू रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स। हम क्या करते हैं, पर्कुलेशन टैंक्स बना देते हैं। पर्कुलेशन टैंक मतलब एक ऐसा टैंक बनाते हैं जिसमें हम छेद कर देते हैं, ठीक है ना, उसमें होल्स कर देते हैं, जिससे जब बारिश होती है तो उसका पानी जो है उन होल्स के थ्रू अंडरग्राउंड चला जाए और वो अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाए। सो उसे हम रिचार्ज पर्कुलेशन टैंक्स कहते हैं। सो रिचार्ज ग्राउंड वाटर एक्वाफर्स, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्रू रेन वाटर हार्वेस्टिंग।
It is a low cost. See, and the major benefit of rainwater harvesting is it is low cost and eco-friendly technique to preserve every drop of water by guiding rainwater to borewell, pits and wells. तो जो भी आप पानी स्टोर करते हो आप उसे वेल्स में स्टोर कर सकते हो, आप पिट में स्टोर कर सकते हो, पिट मतलब जो गड्ढा होता है तो उसमें आप स्टोर करके रख सकते हो. Rainwater harvesting increases water availability, checks the declining groundwater tables. Now, what are the benefits of rainwater harvesting? We can use the rainwater for different purposes. Then इससे जो ground water होता है वो recharge हो जाता है, water table increase हो जाता है. Then it improves the quality of the groundwater through dilution of contaminants like fluoride and nitrates. तो आपने पढ़ा होगा कि अगर ग्राउंड वाटर का लेवल बहुत नीचे चला गया और फिर उसमें से अगर आपने पानी निकाल के पिया तो उसमें आपको फ्लोराइड एंड नाइट्रेट जैसे पॉइजनस एलिमेंट्स आप उसको कंज्यूम कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए जब भी पानी का लेवल बहुत नीचे चला जाता है तो हमें वो पानी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि नीचे आप जानते हो जितना आप अर्थ के नीचे जाओगे उतना ही ज्यादा आपको केमिकल्स मिलेंगे. तो कई बार ऐसा होता है कि पानी वाटर टेबल नीचे चला गया लेकिन तब भी लोग उसमें से गड्ढा करके और उसमें ट्यूबवेल डाल के या फिर हैंडपंप के थ्रू उसमें से पानी निकाल रहे हैं, और वो पानी में क्या होता है हार्मफुल एलिमेंट्स फ्लोराइड एंड नाइट्रेट्स मिक्स होते हैं जिससे लोग उसे कंज्यूम करके बीमार पड़ सकते हैं. इसीलिए जब भी बारिश होती है और वो पानी जब अंदर चला जाता है तो उससे वो जो केमिकल एलिमेंट्स होते हैं जो डेंजरस हो सकते हैं वो डाइल्यूट हो जाते हैं. ठीक है ना, जैसे कि आपने जिससे केमिकल्स पड़े हुए हैं उसमें आपने पानी डाला तो क्या होगा, उसका इफेक्ट कम हो जाएगा. ठीक है, क्योंकि वो उसी में वाटर में डाइल्यूट हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं. तो अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग से. देन फ्लोराइड एंड नाइट्रेट जो केमिकल सब्सटेंसेस हैं उनका इफेक्ट कम हो जाता है थ्रू डाइल्यूशन. देन इट ऑल्सो प्रिवेंट्स soil erosion and flooding and arrest salt water intrusion in coastal areas if used to recharge aquifers. तो बेसिकली ये सॉइल इरोजन को भी रोकता है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, एंड देन ये फ्लडिंग को भी रोकता है, क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश अगर आपने उसे पॉन्ड में या लेक में या टैंक में कंजर्व कर लिया तो पानी फालतू में बहेगा नहीं और इससे फ्लड्स भी नहीं आएंगे. तो देखो इसमें क्वेश्चन कैसे आता है कि हाउ विल यू प्रूव दैट रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज ए लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक फॉर प्रिजर्विंग रेन वाटर. तो इसके ऊपर इस तरह से क्वेश्चन आता है तो आप पूरा जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में आपने पढ़ा है वो सब आप बता देंगे. लाइक इट इज अ वेरी लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली बिकॉज इट डज नॉट पॉल्यूट द एनवायरमेंट, एंड लो कॉस्ट बिकॉज जो भी चीजें हमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग करने के लिए जो भी चीजें चाहिए होती हैं वो हमारे घरों में ही लोकली अवेलेबल होती हैं और एट अ वेरी लो कॉस्ट. सो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ खर्चा भी नहीं होता और आसानी से हम पानी को प्रिजर्व करके रख सकते हैं. Then rainwater harvesting has been practiced through various methods by different communities in country for a long time. So rainwater harvesting is not a very new technique. They are practicing it from a very long time with the help of different techniques. See, ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है. Like give 3 or 4 methods through which rainwater harvesting is done and also make the diagram. तो डायग्राम भी आता है. So you have to go through the diagram. You have to practice diagram also and all these methods. Like first is the हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वॉल्स. ये देखिए आपका ये ना नहीं ऊपर वाला है. हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट. वाटरशेड मैनेजमेंट ये होता है जैसे मान लो पहाड़ से पानी जो है नदियां नीचे की तरफ आ रही है तो वो पानी जो है वो कहीं इधर उधर ना बहे. वहां पे देखो ये सब दीवार टाइप का बना दिया गया, यहाँ पे जो है वॉल टाइप का बना दिया गया, यहाँ पे चेक डैम बना दिया गया ताकि एक, क्योंकि जब स्लोप से पानी नीचे की तरफ बहता है तो वो एक ही दिशा में बहे और वो पानी कहीं ना कहीं यहाँ पे जाके स्टोर हो जाए. तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं हार्वेस्टिंग थ्रू वाटरशेड मैनेजमेंट. तो जहां से भी पानी ढलान से आ रहा है उस पूरे एरिया को घेर लेना ताकि पानी कहीं इधर उधर ना जाए और वो एक ही डायरेक्शन में मूव करके नीचे आके स्टोर हो जाए. देन हार्वेस्टिंग थ्रू लेक्स. Lakes you already know, lakes are also known as eries and they are the simplest method because a depression is constructed on the earth surface and whenever rainfall takes place the water is stored in these depressions. Depressions का मतलब आपको पता है ना, depressions means गड्ढे. तो जितना आप गड्ढा बनाओगे अर्थ पे उतना ही अच्छा होगा क्योंकि उतना ही रेन वाटर उसी में जाके स्टोर हो जाएगा. देन नेक्स्ट है आपका ये हार्वेस्टिंग थ्रू सर्विस वॉल्स. सर्विस जो वॉल्स हैं ये आप जानते हो क्या होता है, जैसे घरों में पानी है ये जो वेल बना दिया गया, ये कुआं बना दिया गया है, अब छत से पानी आ रहा है और पाइप के थ्रू होता हुआ ये इस कुएं में जाके स्टोर हो रहा है. ठीक है, देन ये है आपका हार्वेस्टिंग थ्रू रिचार्ज वेल्स. ये भी वही एक कुएं की तरह ही है, यहाँ पर भी जो है आपका ये देखो एक कुआं का फॉर्म में बना दिया गया है रिचार्ज वेल. और इसका जो पानी होता है रिचार्ज वेल का ये बिल्कुल अंडरग्राउंड जाता है, जमीन के अंदर जाता है और अंडरग्राउंड वाटर को भी वापस रिचार्ज करता है.
सो यहाँ पे सब देखो सैंड फिल्टर हो रहा है, यहाँ पे सैंड को जो फिल्टर किया जाता है और जो फ्रेश वाटर होता है वो नीचे जाता है। तो इस तरह से मतलब ये जो है हाई लेवल पे भी होता है, और जो रूफ टॉप है ये आप घरों पे भी कर सकते हो। ये हम घर पे इतना नहीं कर सकते क्योंकि इसमें पूरा कलेक्शन टैंक है, इसमें देन सैंड फिल्टर करने वाला लगाया गया है, लेकिन ये जो है हम अपने घर पे कर सकते हैं। So these are the four methods: harvesting through service wells, harvesting through recharge wells, then water harvesting through watershed management, and harvesting through lakes. So ये these are the four methods through which rainwater harvesting is done. So we have completed with the rainwater harvesting topic. And जो आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है वो है आपका, दो टॉपिक्स बचे हुए हैं। एक है आपका ये वाटरशेड डेवलपमेंट इन रालेगांव सिद्धि अहमदनगर महाराष्ट्र अ केस स्टडी, बट इसे मैं आज नहीं पढ़ाऊंगी बिकॉज इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड ये भी अच्छे खासे नंबर में आता है, केस स्टडी में आ सकता है, तो इसे मैं डिटेल में जो है नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। तो आई होप कि आपको जो आज पढ़ाया गया वो समझ में आया होगा। वैसे बहुत ही आसान है, अगर आप ये सोचें कि आपका जो 12th का सिलेबस है उसमें चैप्टर्स काफी इजी हैं, शॉर्ट हैं, एंड बेसिकली देखो इस चैप्टर में आपको पढ़ना क्या है, वाटरशेड मैनेजमेंट को 5 नंबर के हिसाब से अच्छे से प्रिपेयर करना है आपको 5 मार्क्स के। लाइक व्हाट इज वाटरशेड मैनेजमेंट इन डिटेल, 3 पॉइंट्स आपको वाटरशेड मैनेजमेंट में पता होने चाहिए। इसकी डेफिनेशन जो फर्स्ट 3 लाइंस हैं ये, then regeneration, conservation and judicious use, and then it maintains balance, and last is community participation. Then you have to remember these 3 programs: हरियाली, नीरू मीरू एंड अरवारी पानी संसद। इसके मेन एम्स क्या है, स्पॉन्सर किसने किया, उसका एम मतलब इसको क्यों चलाया जा रहा है। देन रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये होता क्या है, एंड देन व्हाई इट इज लो कॉस्ट एंड इको फ्रेंडली टेक्निक, एंड इसमें क्या क्या किया जाता है, किस तरह से पानी को कंजर्व किया जाता है, एंड इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं, ये सब इसके बेनिफिट्स हैं। एंड मेथड्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो आपके 4 मेथड्स रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अलॉन्ग विद द डायग्राम, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इतनी सारी जो आपको बताया गया उसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। इफ देयर इज एनी डाउट यू कैन आस्क मी राइट नाउ।